Good morning, Good sir. morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. We have Prasad Bhosle among us. So he will be talking about his journey, how he became Kolhapur topper in JEE Mains 2020. He will be guiding you how to prepare in this particular 2 years phase. उसने क्या क्या किया है, क्या क्या गलतियां किया है, to overcome those उसने क्या क्या सोचा है और क्या क्या फॉलो किया है. डिफरेंट फेजेस में, इनिशियल फेज में पहले 3 मंथ्स में उसका एटीट्यूड कैसा रहा और उसका थॉट प्रोसेस कैसा रहा, बीच में कैसा था, लास्ट में जस्ट बिफोर 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम उसने क्या क्या किया है. Basically he will be guiding you what he did right and जो भी किया है उसने ये जो particular question पे आने के लिए he will be sharing those particular things. If you are having any other questions, you can ask him at the end of the session. We will be sharing our video too. Prasad, you can on. Okay. I think it's on. Okay. Yeah. Okay. So shall I start? Yeah. You can start. Okay. Hi guys, I'm Prasad. So Vasu sir told me that you have an exam coming. So I'm gonna give you a bit of head start on how to study and what should be a way of preparation for these 2 years. So when I joined Inspire Academy, I didn't have any goal for getting into the IIT. I wasn't sure at all, but then so motivated me and it all happened and I came out to be the Kolhapur topper. So what I want to say is you should be dedicated to what you do. From the first day itself, you should know what you want in life. These 2 years are very important. You can get a good college and that makes life easier. So like sir says, for the first 3 months, I say you can take easy for these first 3 months. Find your own schedule. What is good for you, do that. Don't stress yourself. Don't have a rigid schedule. Do how much you can. Whatever sir tells you, complete all that. That is the best way to start off. Don't go doing extra things. That's pretty much for the first 3 months. You can take slow, but then you need to pick up pace because after these first 3 months, the chapters start getting tough and studying for IITs and JEE, it's not easy. You have to put all your heart in it. So after that, so actually, so now should I tell me schedule? Okay, so as everyone know, like Prasad also told about that, ki in the beginning when we start, when we start the subject, the chapters are made in a way like they are a bit easy. They are a bit easy to understand. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है कुछ कि बाद में बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट पॉइंट ये कि स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं. मतलब यू हैव गिवन अ फार्मूला, यू हैव गिवन अ रूल और वो अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. बट जब आप आगे जाते हो तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता कि बस जस्ट फार्मूला रख दोगे तो आंसर आ जाएगा. मतलब द होल पॉइंट इज कि आप अगर अभी थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, लाइक आपने एक फार्मूला रीड किया और आपका आंसर आ गया, तो मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत कम टाइम पे बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज. बट प्रॉब्लम इज, द मेन प्रॉब्लम इज कि जब आप आगे जाओगे और आपका यही एटीट्यूड अगर मेंटेन रहा
तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यूजुअली जब हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि इनिशियली वो उतना सीरियस नहीं रहते हैं और बहुत ही कम प्रैक्टिस से भी मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों प्रसाद? सबसे ज़्यादा क्या है कि क्लास 10th का अगर इनको देखें तो थोड़ा सा भी पढ़ के अच्छा स्कोर आ जाता है, अच्छा परसेंटेज हाँ वही। और वो हैबिट थोड़ा सा गड़बड़ करती है। इसके बारे में थोड़ा इनको एक्सप्लेन करो कि यार वो हैबिट कैसे इम्पैक्ट करती है रिजल्ट्स में, जो आपके 10th के परसेंट है और जो जेई की प्रिपरेशन है कैसे डिफरेंट है, वो एक्सप्लेन करो थोड़ा। 10th का बहुत डिफरेंट रहता है, वो एक फिक्स सिलेबस रहता है, उतना ही पढ़ के देन यू आर डन. बट फॉर जेई there's a vast syllabus. Like, you can't group it into a single thing. हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर उतने ही डेडिकेशन से करना पड़ता है. एंड मतलब उसके लिए कोई देयर इज नो अदर ऑप्शन. लाइक you have to do it, and it's not like you can read it once and you're done. You have to keep it practicing. Got to solve questions, hundreds of questions. Then you get a command over that chapter, and you have to do it for all the 30 chapters in your syllabus, because every chapter has equal importance. It's not like I can leave this chapter, okay, this one's easy, this one's hard. It's not like that. Every chapter has its equal importance. ओके, सो जब भी जैसे ही यार सारे लोग बोल रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें, प्रसाद भी यही पॉइंट बोल रहा है कि सारे स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छा करते हैं आफ्टर 2 इयर्स, उन सब का एक की रूल, एक थंब रूल तो ज़रूर ये रहा है कि सारे चैप्टर्स में ही आपको इम्पोर्टेंस रहना चाहिए। मतलब सारे ही चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत एकदम फुल इंथुजियास्टिक रहते हैं और बहुत एफर्ट लगा के करते हैं, फिर जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा टाइम होता है, वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो चैप्टर्स पे कम होता है। सपोज मैंने आज एक प्रैक्टिस शीट दी और बहुत सारे स्टूडेंट ने 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अभी प्रॉब्लम ये आ जाती है इस सिनेरियो में कि जब आप स्टार्टिंग में काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं लेकिन बाद के चैप्टर्स में अगर आप इतने क्वेश्चंस नहीं करते हैं, तो उससे फिर मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है कि आपको सारे चैप्टर्स में इक्वल एफर्ट लगाना पड़ता है। किसी भी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते कि यार ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है और ऐसा। अभी 10th बोर्ड्स में क्या होता है कि यार बहुत ही प्री डिफाइंड होता है। फिजिक्स में भी 5 चैप्टर्स हैं, उसमें भी आपको पता होता है कि यार ये वेटेज इतना इतना है। तो बोर्ड्स की क्या खास बात है, बोर्ड्स में सबको वेटेज पता होता है कि यार ये ईच चैप्टर कैरी दिस मैनी मार्क्स। बट जेई में, नीट में जब हम प्रिपेयर करते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन और लिमिटेशन, किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है। तो सब लोग को ये चीज सबसे ज्यादा पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि यार स्टार्टिंग से ही चैप्टर 1 से ही इक्वल फोकस रखना है, कहीं पे ऐसा कम नहीं करना है, वीक नहीं पड़ जाना है कहीं पे कि यार ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है या कुछ भी हो गया। किसी रीजन की वजह से किसी का कुछ मिस हो जाता है तो उसको बैलेंस भी करना आना चाहिए। तो प्रसाद थोड़ा अगर आप कुछ गाइड करें इनको कि यार लेट से किसी रीजन की वजह से किसी के कुछ लेक्चर्स मिस हो गए, तो उसे बैलेंस कैसे कर लेना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं किया, कुछ भी चैप्टर मिस हुआ तो एट द एंड उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहेगी उन्हें। रहेगी सर, रहेगी. तो मेरा एक चैप्टर मिस हुआ था ऑर्गेनिक का, तो उसके लिए यू हैव टू keep aside a part of your day for that. When you get back to your schedule, you have to keep a part of your day for that, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते. You have to stick up to it and keep talking with sir, complete that chapter, at least can't leave it in the middle. जब तक वो चैप्टर पूरा नहीं होता तब तक कीप गोइंग बैक टू इट, और फिर पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व करके सर से सारे नोट्स लेके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज सर्स नोट्स आर द बेस्ट. दे कवर एवरीथिंग एंड यू नीड टू हैव दैट. ओके, तो
जैसे अगर अभी एक पॉइंट प्रसाद ने डिस्कस किया और मैं बार बार मैंने भी लेक्चर्स में बोला हुआ है कि वी प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स, ऑफ कोर्स दैट इज गुड, बट द की पॉइंट इज आफ्टर ईच लेक्चर यू मस्ट गिव सर्टेन टाइम टू मेक योर ओन नोट्स. जो सपोज 1.5 आवर का हमने लेक्चर लिया, एटलीस्ट you must invest your half hour to make your own notes, because if you will make your own notes, if you will make own notes, that will help at the end. suppose कल टेस्ट है, तो अब आप टेस्ट है और मैंने सपोज 7 लेक्चर्स ले लिए, क्या आप 7 लेक्चर्स रिव्यू कर सकते हो क्या बिफोर द टेस्ट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. theoretically किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. so that means for that you must have your own notes. अभी कुछ लोग सोचेंगे सर नोट्स क्यों बनाना है, मतलब बुक्स हैं, बुक्स पढ़ लेंगे, बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्लास 9-10 तक चल जाता है, बुक्स में बहुत ही कम पेजेस होते हैं. बट जब आप 11-12 की बात करते हैं, ईच चैप्टर कैरी 40 to 50 पेजेस, आप उतना वापस से रीड नहीं कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई यू नीड समथिंग cover everything, which can cover most of the concept of your part. So that's why you must carry your notes. Okay, Bansal sir is also there. Bansal sir is here with us. Hello everyone. हेलो सर. प्रसाद कैसे हो? अच्छे. अच्छा अच्छे सर. हाँ देखो यार, मेरा एक थोड़ा सा, अभी हम लोग सेंटर पे भी मिलेंगे तो एक्चुअली मेरे को देखो डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है. जो भी लोग तुम्हें सिखा रहे हैं यहाँ पे और जो भी लोग तुम्हें गाइड कर रहे हैं, अभी प्रसाद भी जैसे आ गया है उस लाइन में, तुम लोगों को बता रहा है, तो यार यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और अपने टाइम पे वो एग्जाम जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है काफी अच्छी रैंक से, IIT क्वालिफाई किया हुआ है, पढ़ के भी आए हैं सभी लोग वहाँ पे अभी. तो देखो आप इन चीजों को ऐसे मजाक में नहीं ले सकते यार. मतलब एटलीस्ट आपको सिंसियरिटी तो रखना ही पड़ेगा. जैसे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि जैसे काफी लोगों को भगवान पे बहुत भरोसा होता है, किस्मत पे बहुत भरोसा होता है, तो तुम भगवान पे बहुत अच्छे से भरोसा रखो. भगवान पे यदि आप भरोसा रखते हो ना, तो आपको वो सब मिलता है जो आपके लक में है, जो भी तुम्हारी किस्मत में है वो सब मिलेगा. लेकिन तुम लोगों को अपनी मेहनत पे भरोसा है ना, तो भगवान तुम्हारी किस्मत में वो लिखेगा जो तुम्हें चाहिए. जो आपको चाहिए होता है वो सब तुम्हारी किस्मत में लिखा जाता है भगवान से, तुम यदि मेहनत करते रहते हो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हो. तो प्रसाद इनको थोड़ा सा नोट्स का इंपॉर्टेंस बताओ. जैसे अभी परसों हम लोगों ने इनका टेस्ट रखा हुआ है संडे को. अभी काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टेस्ट के लिए क्या रेफर करना चाहिए. तो मैं इनको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि नोट्स ही आपकी बुक्स होती हैं, जो आप नोट्स के अंदर ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम लोग काफी सारे, और जो हम लोग शीट सॉल्व करते हैं, जो हम लोग ग्रुप पे शीट पोस्ट करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार आप उसको वो एक्सप्लेन कर दो. थोड़ा तुम एक्सप्लेन करोगे तो काफी अच्छा इन लोगों को समझ आएगा. सर मुझे तो लगता है उसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है. हाँ. क्योंकि मेरी पढ़ने की स्ट्रैटेजी वही होती थी कि पहले जो नोट्स है वो एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ने चाहिए. क्योंकि अगर नोट्स पढ़ने से पहले सॉल्विंग चालू किया तो वो आउटपुट नहीं आता. जब सारे नोट्स पढ़ के हो जाता है तो उसके बाद वो सॉल्विंग में वो उतना आउटपुट आता है और वो सम्स कर पाते हैं हम. अच्छा, एक पॉइंट और, सपोज करो आप अपना नोट्स ही अच्छे से कवर कर लेते हो, तो आफ्टर दैट कोई बुक थ्योरी के लिए रेफर करने का रिक्वायरमेंट कभी होता है क्या? थ्योरी के लिए नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती. कभी भी कोई बुक थ्योरी के लिए रेफर नहीं होती है. केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक पोर्शन के लिए NCERT की बुक जरूर रेफर करते हैं हम लोग. बाकी फिजिक्स और मैथ्स में कभी कोई बुक रेफर नहीं करते हैं. जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोग प्रॉपर क्लास नोट्स के अंदर ही कवर करते हैं. तो आपको बहुत अच्छे से नोट्स मेंटेन करके रखना है अपना प्रॉपर. उसके अंदर एक इंडेक्स बना के रखो स्टार्टिंग में कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे स्टार्ट हो रहा है, किस पेज पे एंड हो रहा है. उसके अंदर सब टॉपिक्स के पेजेस भी लिख सकते हो. इसका बेनिफिट क्या होता है, अगेन देखो ऑब्वियस ही बात है, सपोज करो तुम 1 साल के बाद पढ़ रहे हो और लेट्स से बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ही बाइनोमियल एक्सपेंशन का कुछ रीड करना है हमें. तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूस सारे पेजेस को देख रहे हो कि किस पेज पे है. तो इंडेक्स का यूज यही होता है कि आपको एक बार में ही पता चल जाता है कि किस पेज पे उसके रिगार्डिंग थ्योरी है, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट हम लोगों ने नोट किया है. और वो तुम तभी कर पाओगे जब हर पेज पे आप प्रॉपर
पेज नंबर नोट करोगे, स्टार्टिंग में इंडेक्स नोट करोगे। देखो ऐसा नहीं होता कि आज ही बैठ के सारे पेजेस पे नंबर नोट कर दो, ऐसा नहीं होता है। डे बाई डे प्रॉपर लिखते चलो। तो स्टार्टिंग में 10-15 डेज लिखोगे तो बाद में फिर ये आपका इजीली एक अच्छा हैबिट बन जाएगा। इसके बाद अभी तो खैर इतना प्रैक्टिस शीट तुम लोगों को नहीं मिला है, तो प्रैक्टिस शीट के लिए एक सेपरेट आपको बुक रखना होता है, उसके ऊपर भी प्रॉपर पेज नंबर नोट करते चलो। और कोई भी क्वेश्चन, लेट से आज मैंने शीट पोस्ट किया बाइनोमियल थ्योरम का, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है 1 to 50 क्वेश्चंस, उनके आगे भी उनका पेज नंबर नोट कर दो कि किस पेज पे आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सो दैट फ्यूचर में जब आप इसका रिवीजन करोगे शीट का, और सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आपको बार बार हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। हम होंगे हालांकि तुम लोगों के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सॉल्यूशन आप अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो बेस्ट। और देखो यार, फिजिक्स और मैथ्स ऐसा नहीं होता है कि किसी पीडीएफ को देख के आपको समझ आ जाएगा, मतलब बुक का प्रिंटेड आपको देख के समझ में आ जाएगा। बेस्ट जितना बच्चे अपने हैंड राइटिंग से बना के लिखोगे नोट्स, वो बेस्ट रहता है। ओके प्रसाद, इनको एक पॉइंट यार ये भी बताओ, अभी जैसे काफी सारे बच्चे डर रहे हैं कि बहुत टफ है, और तो उसके बारे में तुम क्या बोलते हो, बताओ थोड़ा। सर टफ तो है, पर अगर उतने लेवल की पढ़ाई की और खुद पे कॉन्फिडेंस रखा तो बिल्कुल टफ नहीं है। अच्छा ओके, अभी थोड़ा सा आप ये बताओ कि लेट्स से 10th तक, क्योंकि अभी सभी बच्चों का, काफी सारे बच्चों का माइंड सेट 10th क्लास तक ही है, कि 10th क्लास तक हम लोगों का स्टडी पैटर्न ऐसे रहता था कि जो स्कूल में आ रहा है वही हम लोग घर पे आकर के प्रॉपर उसका एक की होता था, उसमें से नोट करके होमवर्क कंप्लीट करते थे, और सेम क्वेश्चंस फिर आपके एग्जाम में भी आते हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, क्या तुम्हें डिफरेंस देखने को मिला, और उसको कैसे आपने कवर अप किया, वो थोड़ा सा बताओ। बेसिकली इसमें क्या रहता है, थियरी आपको अलग से पढ़नी पड़ती है, वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस के लिए अलग से रहते हैं, और जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अलग रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। तो हर एक के लिए उतना आपको टाइम देना पड़ता है। थियरी अगर परफेक्ट हो तो सॉल्विंग के टाइम वो क्वेश्चंस आसान आते हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपको आसान आ रहे हैं तो बाद में जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं उस आपका माइंड चलेगा, नहीं तो वो डायरेक्ट थियरी से टेस्ट में वैसे नहीं होता। इसमें बीच का वो जो सॉल्विंग का गैप है प्रैक्टिस का, वो आपको फिलअप करना पड़ता है इस 11th-12th में। वो एक मेन डिफरेंस रहता है 10th और 11th-12th, कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है सारा चीजें प्रैक्टिस करने के लिए। डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के आप एग्जाम नहीं दे सकते। यार बेसिकली थोड़ा सा आप डिसिप्लिन रखोगे ना सभी लोग, जैसे मेरे को याद है प्रसाद के बारे में, LK शर्मा एक बुक होती है मैथ्स के अंदर, तो प्रसाद ने वो दिसंबर तक कंप्लीट किया था। फिर प्रसाद नेक्स्ट मेरे को पूछने आया था कि सर मेरा LK शर्मा कंप्लीट हो गया है पूरा, उसके अंदर 30 चैप्टर्स थे और ऑलमोस्ट 500 पेजेस हैं उस बुक में। तो प्रसाद ने वो बुक पूरा कंप्लीट किया था। फिर जैन की स्टार्टिंग में प्रसाद मेरे को फिर पूछना है कि सर ये बुक मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी नेक्स्ट क्या करूं। तो मैंने इसको ये बोला था कि यार तुम इस बुक को फिर से सॉल्व करो, और लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, काफी सारे स्टूडेंट्स इस टाइम ये बोलते हैं कि सर हम लोगों ने ये बुक कंप्लीट कर ली है, अभी मैं इसको फिर से क्यों सॉल्व करूं। लेकिन प्रसाद ने विद इन 15 डेज वो बुक फिर से पूरा कंप्लीट किया था। तो ये मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा कि जो कंसेप्ट स्टार्टिंग में हम लोग कुछ इग्नोर कर देते हैं या फिर ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हालांकि उसके बाद में इतने सारे डाउट्स नहीं आए थे प्रसाद, तुम्हें याद है कुछ 10-15 ही डाउट थे स्टार्टिंग में, कुछ डाउट होते थे, बाद में डाउट्स नहीं आए थे। तो वो इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम चीज को हमने इसको फिर से करने के लिए बोला और उसने करा, तो यार उस चीज का रिजल्ट है इसके पास आज। ठीक है, और अभी एडवांस में और अच्छा सॉल्विंग के टाइम वो एक अच्छा रहता है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं आता या जो क्वेश्चन अच्छा रहता है वो मार्क करके रखना है, क्योंकि बाद में जब हम वापस एक बार रिव्यू करते हैं तो सिर्फ वो क्वेश्चन देख के ही बहुत इजी हो जाता है। सब 50 क्वेश्चन देखने से अच्छा है कि कुछ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो हमको टफ लगे या नहीं आए वो देख के मिस्टेक्स नहीं होती। फिर तो टफ क्वेश्चंस लगे या फिर जो नहीं है या फिर कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो उनको बेसिकली मार्क करके रखना चाहिए, आप ये बोल रहे हो ना। क्योंकि हर
जो सॉल्विंग मटेरियल रहता है उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो सब तो हम नहीं दे सकते, एटलीस्ट 10 दे सकते हैं, 15 देख सकते हैं। वो सारे देख के पूरा आइडिया आ जाता है कि हम क्या करना चाहिए। और थोड़ा इनको ये भी बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशंस। ये जो एग्जाम्स है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, टेस्ट के बाद क्या करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजुअली टेस्ट लिख लेते हैं बच्चे, हाँ, उसके वही बाद छोड़ डिस्कशन देते हैं। टेस्ट जितना ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर डिस्कशन नहीं हो तो टेस्ट का कुछ यूज नहीं है। टेस्ट इज द ओनली वे टू नो दैट यू कैन डू इट। अगर आप टेस्ट देते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मुझे कुछ तो आता है, हमने पढ़ा है। और फिर उस टेस्ट का डिस्कशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 20 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, तो 5 का डिस्कशन होके आपको 5 परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर उस 5 में से एक फाइनल एग्जाम में आ गया तो 4 मार्क्स चले गए। तो अगर 5 आ गया, 20 मार्क्स चला गया। अच्छा प्रसाद, ऐसा भी कुछ हुआ कि यूजुअल शेड्यूल में या यूजुअल शीट्स के अंदर या यूजुअल क्लासेस के अंदर आप जिन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हो वही जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा कुछ? हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। या मेरे इग्नोर साथ नहीं तो करना है बहुत किसी होता को, इग्नोर नहीं करना है किसी क्वेश्चन को। हाँ, वो तो काफी होता है, मतलब जिस सोम कंसेप्ट सर का का। बहुत होता था ये। हाँ, अभी भी होता है। सपोज करो कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को पूछने आता है और सपोज करो मैं उसको इग्नोर करता हूँ क्वेश्चन को, तो अगले दिन ही 5 बच्चे बता रहे कैसे वो सेम डाउट लेके आते हैं। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा भी डाउट रहे तो सर को पूछना है। छोटा सा भी डाउट रहे, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलती भी है नहीं है। पूछना है। हाँ, यू नीड टू आस्क। हम कुछ नहीं सोचेंगे ये छोटा क्वेश्चन ऐसा क्या पूछा है, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे हम। हाँ, वी आर डूइंग दिस फॉर आवरसेल्व्स, नो वन इज गोना जज यू। पूछना है, हर एक क्वेश्चन पूछना है। ओके प्रसाद, तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो, या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ शेड्यूल? 11th में तो मैं 26 आवर्स बोलूंगा, पढ़ना है क्या? 11th में मिनिमम 8 to 10 आवर्स मिनिमम होना ही चाहिए उतना। दिन में 2 सब्जेक्ट 10 आवर्स। वो 10 आवर्स में कैसे डिवाइड करता था तुम? लाइक नोट्स के लिए कितना है, सॉल्विंग के लिए कितना है, ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं वैसे नहीं करता था। दिन में मतलब अगर चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो पहले नोट्स पूरा टाइम, मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ता था, तो उससे वो जो एंड थियरी नोट्स है। पढ़ने का मतलब भी इनको थोड़ा समझाओ। नोट्स पढ़ना मतलब दे विल जस्ट लुक एट दोस थिंग्स, हो गया नोट्स पढ़ लिया, हो गया। नहीं, मतलब जो नोट्स पढ़ते टाइम जो क्लास में हुआ है वो रिकलेक्ट करना है कि सर ने इस टाइम क्या बताया था, या फिर इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा था, वो माइंड में चलना चाहिए। फिर वो जो कंसेप्ट पढ़ के वो विजुअलाइज होना चाहिए कि ठीक है, हाँ ऐसा था, फिर मैंने ऐसे सॉल्व किया था, वो सब उस टाइम सोचना चाहिए। और जो नोट्स में क्वेश्चंस रहते हैं वो भी उस टाइम सॉल्व करने, एक अलग शीट लेके या अलग पेज लेके रफ में उसको सॉल्व करते रहना है, क्योंकि नोट्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं। और फिर पूरा नोट्स एक 3-4 बार पढ़ने के बाद फिर कुछ तो सॉल्विंग के लिए लेना है। अगर वो डायरेक्ट सॉल्विंग के लिए लिया तो कुछ याद नहीं आता फिर। इधर आप लोग और नोट्स के लिए पेज नंबर्स लिख सकते हो, और नोट्स इतना ज्यादा पढ़ लेना चाहिए, तुमको पता हो जाना चाहिए किस पेज में क्या है। वो पता हो जाता है, इतने बार पढ़ लेना चाहिए कौन से पेज पे क्या है। इमीडिएट एग्जाम लिखते समय वो क्लिक हो जाना चाहिए, वो मैपिंग हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे सर ने तब ऐसा किया है। एक चैप्टर के लिए इजी रहता है, पर बाद में जब 30 चैप्टर्स हो जाते हैं और फुल लेंथ टेस्ट देना चालू करते हैं तो उस टाइम याद रहना चाहिए कि ये किस टॉपिक का है और मुझे किस बुक में देखना है। तो इसलिए आपका नोट्स परफेक्ट होना चाहिए। नोट्स ही बुक्स हैं, नोट्स के अलावा नहीं पढ़ना होता, कुछ भी नहीं पढ़ना होता है।
सारे कंसेप्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग वे में और बहुत ही समराइज करके हम लोग नोट्स के अंदर लिखते हैं हम सबको। बाकी देखो यार, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको 8 to 10 आवर्स ऐसा कुछ फिक्स है, वो थोड़ा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हाँ, मेन रिजिड शेड्यूल नहीं रखना है। रिजिड शेड्यूल नहीं रखना है। मेन पर्पस ये है कि आज का जो आपका वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका वर्क 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है तो आप घूमने निकल जाओ, खेलने निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा प्रसाद, हम लोग ऐसा कभी हम लोगों ने क्लास के अंदर बहुत सीरियस एनवायरनमेंट ऐसा कुछ रखा था क्या? मूवीज कितनी बार देख के आए हम लोग 2 years के अंदर? 3 बार, कम से कम 3 बार तो देख के आए थे, और खाने हाँ। बाहर तो काफी बार गए थे यार, है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोग बहुत सीरियस एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ट्रेडिशनल डे ट्रिप भी गए थे हम लोग। हाँ। एवेंजर्स एंड गेम के लिए सब लोग साथ में मिलके गए थे सारे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा, फर्स्ट शो ही गए थे, है ना? हाँ, हाँ, फर्स्ट डे 8:30 मॉर्निंग 8:30 से। हाँ, एग्जैक्टली। एंड उस पर्टिकुलर शो के लिए लोग ने हमारे लिए वो एवेंजर्स टी-शर्ट के लिए थे। दिए है। करना है, मतलब पढ़ाई भी करना है, उतने ही मजे करने हैं। उतने ही मजे करना है। पर हाँ, एक है कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। ठीक है, To minimum. वीक में 1-2 बार चलता है, बट इट शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। डेली 1 घंटा 2 घंटा नहीं डालने उसमें। हाँ, वो उस टाइम छोटा लगता है, पर एट द एंड वो दिन का 1-1 घंटा करके बहुत वेस्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट करो सब लोग, सोशल मीडिया से दूर रहो। ऐसा तुम तो शायद बिल्कुल अभी हो क्या, तुम फेसबुक पे नहीं हो ना? था, अच्छा, नहीं पता के लिए फेसबुक बंद का। किया था। अच्छा अच्छा। अभी ये इस टाइम पे ओपन किया है, वापस बंद करूंगा अभी। अभी एक क्वारंटाइन के फेज में कैसे रहना है उनका, बताओ घर पे क्या कर। अभी मैं बोलूंगा थोड़ा रिलैक्स चलेगा, क्योंकि पूरा दिन अभी पढ़ाई हो नहीं सकती, वो मेंटालिटी क्रिएट नहीं होती। तो एक बार बैठा तो 2 घंटे 3 घंटे जो है, पर जब बैठे तो 100% देना चाहिए। कितना भी टाइम बैठो, पर जब बैठते हो 100% दो। ओके प्रसाद, कुछ लोग को टेस्ट का फियर रहता है, मतलब जैसे वैसे वो पढ़ते हैं, सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, जब टेस्ट का टाइम आता है तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फियर रहता है उनको, और वो टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट में वो एस्केपिज्म वाला थॉट रहता है टेस्ट को लेके, तो उनको तुम थोड़ा क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि टेस्ट तो देने ही चाहिए? टेस्ट देने चाहिए, कम मार्क्स है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे खुद को पता चलता है कि वेयर वी स्टैंड और हमको कितना और करना पड़ेगा। कम मार्क्स है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि फाइनल में तो एक टेस्ट देनी है, उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो टेस्ट स्किप मत किया करो। ओके, तो सब लोग को जैसे पॉइंट है, टेस्ट तो देना ही है, और उसके लिए शीट का जो सारे सब्जेक्ट का शीट दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, एट द एंड अगर कंक्लूजन देखे तो पॉइंट वही है कि अभी जैसे क्वारंटाइन टाइम चल रहा है और लॉकडाउन फेज चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भी स्टडी कर सकते हो, नहीं, बट सिंपल एक आप 8 to 10 आवर्स तो अपने लिए अरेंज कर ही सकते हो, एक रफ आइडिया, जिसमें से ऑलरेडी मतलब 4 आवर्स नियरली आपका लेक्चर ही हो जाता है। रिमेनिंग 4 आवर्स में आप थोड़ा प्रैक्टिस तो सारे सब्जेक्ट का कर सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। टेस्ट होने के बाद टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सबको ही वो करना चाहिए। टेस्ट में एक सेल्फ एनालिसिस टाइप का क्राइटेरिया रखना चाहिए। टेस्ट होने के बाद तुरंत सारे क्वेश्चन एक बार रिव्यू करो, आंसर्स देखो, रीसॉल्व करो कि क्या गलतियाँ हुई, कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। और यार ये जो टाइम होता है, मतलब डरना तो बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे कि यार हमने कुछ लेक्चर मिस कर दिया है, कोई पार्ट मिस कर दिया है तो टेस्ट नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं यार। लेट से आपने एक पार्ट मिस भी कर दिया है तो चलेगा, टेस्ट आपको उसी टाइम पे देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार टेस्ट का डेट निकल गया ना, तो वो जो इंतुसियाज्म होता है वो खत्म हो जाता है, टेस्ट का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपके लिए।
तो एक चीज सबको ये ध्यान देना चाहिए कि टेस्ट जिस टाइम पे दिया जाता है, जिस टाइम पे भी टेस्ट अरेंज करते हैं, सपोज टेस्ट संडे को है, तो सब में ये पॉइंट रहना चाहिए कि ट्राई करना है कि टेस्ट संडे को ही देना है। किसी भी तरीके से डेडलाइन को मैच करने का आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं, छूट गए हैं कुछ टॉपिक, आप उनको कंप्लीट करो, ट्राई करो कि मैनेज करने का। अभी आज से ही आप स्टार्टिंग से सीखोगे थोड़ा सा मैनेज करना, तो आप कर सकते हैं। लास्ट के 2 मंथ्स में उसका बहुत फायदा होता है। बहुत बहुत बेनिफिट रहता है लास्ट का, कि आपको अगर स्टार्टिंग से ही ये हैबिट है कि आपका टॉपिक भी छूट गया फिर भी कैसे कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एक चीज थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी टॉपिक छूट गया है तो ये नहीं करना है कि टेस्ट छोड़ दिया आपने। आपको बेस्ट रहता है कि आप कंप्लीट करें, अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तब भी टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करें। एटलीस्ट वो टॉपिक तो आप लोग सीख जाओगे। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से लेते हैं, मे बी दे हाँ, वुड बी हैविंग मोर हाँ। क्वेश्चंस। तुम लोग पूछो क्वेश्चंस। यार आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई सजेशंस है तो वो रख सकते हो अपने। कोई भी डाउट है, क्योंकि प्रसाद ही गाइड कर सकते हैं तुम लोग को और ज्यादा, बिकॉज अभी उसने वो फेज से अभी भी चल रहा है उसका फेज, अभी हुआ नहीं है उसका एग्जाम्स, बट हाँ। हेलो, है? अगर आपको टेंशन आ रहा है एग्जाम के पहले तो आप क्या करते थे? टेंशन ऐसा लेना ही नहीं है। टेंशन तो आता ही है, सबको आता है। हाँ, पर अगर आया तो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि ठीक है अभी कम मार्क्स आए चलेगा, मुझे क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व करना नहीं आया चलेगा, पर ऐसा रिजिड मत रखो कि हाँ मुझे टेंशन आता है अब एग्जाम में अच्छा नहीं हो पाएगा। जब वो 3 घंटे आते हैं एग्जाम्स के, हो जाता है, टेंशन चला जाता है अपने आप। पहले टेंशन किस वजह से आया होगा, पहले वो भी सोचो तुम लोग का। मतलब हाँ। तुम लोग एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस दिया है वो कंप्लीट नहीं किया है, इसके वजह से टेंशन आ रहा है, तब जेन्युइन है, आना चाहिए। अगर कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, तभी भी टेंशन आ रहा है, देन वो कॉमन है, वो होता है एग्जाम में कैसे परफॉर्म करता हूँ मैं, तो थोड़ा रहता है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तब। इफ यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स, वर्कशीट कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्लासेस मिस कर लिया, तब टेंशन आ रहा है, ओके तब कुछ तो करना पड़ेगा। यू नीड टू टॉक टू अस, क्या कर सकते हाँ, हैं। हाँ, कीप टॉकिंग टू सर। जब आप सर से बात करते हो तब many things become easy. कीप टॉकिंग, या शेयर थिंग्स। इफ यू शेयर थिंग्स तब पता चलेगा क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू मे नॉट नो द सॉल्यूशन, बट हमको कुछ पता होगा, वी विल गाइड यू। टेंशन को पॉजिटिव वे में लेना है बेसिकली। और बाकी टेंशन के बारे में मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि जिस चीज के लिए आप टेंशन लेते हो वो टाइम एक टाइम के बाद निकल जाता है ना। सपोज करो मैं कल के एग्जाम के लिए टेंशन ले रहा हूँ, तो कल का एग्जाम 10 to 1 3 आवर्स होगा, उसके बाद वो टाइम निकल जाएगा टेंशन वाला, वापस से लाइफ वही नॉर्मल जो अपन लाइफ रहती है हम लोगों की। तो टेंशन वाला टाइम भी निकलता है यार सबका। ओके, ऐसा नहीं होता है कि टेंशन वाला टाइम हमेशा रहता है। प्रसाद, आर्या का डाउट है एक, कि जैसे तुमने बोला कि यार पेस अप आफ्टर अ वाइल, तो मतलब एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो पूछना चाहते हैं कि पेस अप आफ्टर अ वाइल का मतलब क्या है। मतलब पहले पहले कैसे रहता है, आप जैसे बोले पहले चैप्टर्स थोड़े इजी रहते हैं। एग्जैक्टली उतना हाँ, तुम अगर पहले से ही उतना प्रेशर डालोगे तो बाद में यू बिकम लूज, वो स्पीड कम पड़ने लगती है बाद में। तो धीरे धीरे पेस पिकअप करो, पहले थोड़ा स्लो जाओ, मतलब पहले 2 घंटे बैठो, 1 और आधा घंटा बैठो, थोड़ा थोड़ा करके बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और जब आपको सारा चीजें आने लगता है तब यू कैन सिट फॉर 3 hours 4 hours विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहले पहले वो
3 घंटे 4 घंटे बैठने का मन नहीं होता। तो धीरे धीरे और कम सॉल्विंग कीजिए। मतलब अगर 2 घंटे में 15 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन हुए, बस है। बाद में वो स्पीड आती है, पर पहले एम फॉर एक्यूरेसी और स्लोली करना है सारा पहले। बाद में यू कैन स्पीड अप और वो टाइम लिमिट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद में ब्रेन तुम लोग का ट्यून हो जाएगा। पहले धीरे वो आदत डाल लो, बाद में ट्यून हो जाएगा। स्टार्टिंग में पहले ही प्रेशर दिया तो वो हो नहीं पाता सारा। स्टार्टिंग में हम भी जब क्लासेस लेते थे, दिन में एक ही लेते थे। हाँ, वो भी हम इनफैक्ट व्हेन वी केम टू टीचिंग, वो भी हम एक ही लेते थे। अभी हम 5 ले लेते हैं। ओके, किसी और एक्सक्यूज मी सर, पूछना चाहता हाँ, किसी का डाउट है? सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होता है? अच्छा, ये हमसे पूछ रहे हैं। ओके, अभी तो we used to complete the syllabus by अक्टूबर एंड या स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर। बट अभी तो ये लॉकडाउन ये सब है ना, अब एवरीथिंग इज अनसर्टेन फॉर नाउ, बट we will try to complete it by November, like start of November। 11th का पोर्शन आपका मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाता है एंड 12th का पोर्शन अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाता है। ओके सर। हाँ, लाइक अभी आपका 11th का पोर्शन 2021 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा एंड 2021 अक्टूबर तक आपका 12th कंप्लीट पोर्शन हो जाता है फिर पूरा। थैंक्स सर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हम सिलेबस कब कंप्लीट करते हैं उससे ज्यादा तुम लोग को सिलेबस का पढ़ाई करना। हम तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बट हर एक चैप्टर आप लोगों का खत्म होता जाना है पैरेलली, रिविजन्स। ऐसा नहीं सोचना है सारे सिलेबस होने के बाद एक साथ बैठता हूँ मैं, अब नवंबर पूरा खत्म कर लूंगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, हर एक चैप्टर के बाद वो आपका बिल्डअप होना चाहिए। वो लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना है। वो चैप्टर का पूरा सॉल्विंग और वो जो थियरी है वो पढ़ के उस चैप्टर के बाद ही होने चाहिए। लास्ट के 2 मंथ सिर्फ रिवीजन और टेस्ट के लिए रखने हैं, कुछ नया नहीं पढ़ना है उस टाइम। ओके, तो मुझे लगता है अभी किसी को कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई गेस आज के लिए काफ़ी क्लियर है। और बहुत सारा अगर कंक्लूजन देखें आज का, तो मेन पॉइंट 2 चीज़ों पे ही फोकस्ड है यार। डरना नहीं है, ऑफ कोर्स, मतलब सबको थोड़ा सा फियर रहता है, ये सारी चीज़ों का टेंशन भी रहता है, और टेस्ट के पहले टेंशन डबल ट्रिपल हो जाता है, जेन्यून है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये कि वो आपको इम्पैक्ट कैसे करता है वो ज़्यादा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऐसा करना है कि टेंशन आपको इम्पैक्ट नहीं करने पाए। टेंशन है चलेगा, आप अपनी एक्टिविटीज यूजुअल रखो। दैट मीन्स अगर मतलब मैं मेजर पॉइंट बताऊं कि हम कैसे ट्राई करते हैं कि टेंशन सबको रहता है, पूरा पॉइंट रहता ही है, तो टेंशन रहने दें, टेंशन को चलने दें। आप अपनी जो यूजुअल एक्टिविटीज करते हैं, सपोज मेरा टारगेट है कल का टेस्ट, आप टेस्ट को फोकस करें, टेस्ट के लिए जो भी पढ़ना है वो रिवाइज कंटिन्यू करें, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है क्वेश्चन सॉल्विंग करें। अच्छा, टेंशन को लेके बैठ नहीं जाए कि अरे टेंशन है बस बैठ गए, वो सिनेरियो नहीं हो जाना चाहिए। सबको टेंशन आता है, एकदम जेन्युइन पॉइंट है, बट उससे इम्पैक्टेड नहीं होना है आपको ट्राई करना है कि आपको जो यूजुअल रूटीन है, जो काम है, वो आप कंटिन्यूअसली करते जाओ। सपोज टेस्ट है तो उसके लिए पूरा रिवीजन कंप्लीट करो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो और प्रैक्टिस कर लो। तो क्लियर है यहाँ पे यार? किसी को कुछ और डाउट्स, कोई कुछ पूछना चाहता है, प्रसाद से कुछ सजेस्ट करना चाहता है, या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कुछ? प्रसाद, इनको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी बता दो कि क्या तुम्हारा एनालिसिस रहा, कि हो सकता है मैथ्स थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग लग रहा हो कि यार ये कैसे, कौन सा बुक्स फॉलो किया तुमने, बुक्स के बारे में एक बार बता देना इनको। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा स्ट्रेटजी एनालिसिस, तुम्हारा क्लास में कैसा एनवायरनमेंट रहता था, तो हम लोग कैसे तुमको डाउट्स क्लियर करते थे। फिजिक्स से चालू करता हूँ। तो फिजिक्स के लिए मतलब वही है, क्लासेस में जो होता है वही बेस्ट है। क्लासेस और नोट्स, वो उन दोनों का इंटरलिंकिंग होना चाहिए।
वो अच्छे से आपको पढ़ के नोट्स सारे कवर करते हैं थ्योरी। और अगर बुक्स की बात आई तो पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो डीसी पांडे अच्छी है। जब आप स्टार्ट करते हैं तब डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग। और जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मुझे आते हैं सारे क्वेश्चंस, आई कैन डू इट, तब उसके बाद यू कैन जंप टू सेंगेज। सेंगेज हैज अ बेटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, और वो आप जब कर सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि मुझे आता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, अगर आपको थियरी आती है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं जमते। तो पहले थियरी, फिर थोड़े इजी क्वेश्चंस, और फिर जो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। फिर मैथ्स के लिए जो सर शीट्स देती है वो सॉल्विंग के लिए अच्छे, बहुत अच्छे, सारा उसमें कवर होता है। और मैथ्स के लिए आप डायरेक्ट एंगेज कर सकते हो, उसमें बहुत क्वेश्चन रहता है और वो हर क्वेश्चन टाइप कवर कर लेता है। केमिस्ट्री के लिए सर के नोट्स 3-4 बार पढ़ने, मतलब रटने पूरे नोट्स केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ सॉल्विंग करना है ठीक है, पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए पूरे नोट्स पढ़ने हैं। तो नोट्स अच्छे से मेंटेन कीजिए। जितने अच्छे नोट्स आपके रहेंगे उतना आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा, और वो उतना जल्दी रिकॉल होता है सारा। और फिर केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एन अवस्थी यूज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए के कुमार रहती है, वो अच्छी है। और ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान। और जब आपकी ये बुक सारे हो जाते हैं तो सर से हमेशा टच में रहिए कि मेरा इतना हो गया है और क्या करना चाहिए। सर आपको सही गाइड कर सकते हैं कि आपको कितना करना चाहिए, कितना दिन का टारगेट रखना है, या आप कितना कर सकते हो। ये सर से टच में रहिए। जितना आप सर के साथ बात करेंगे उतना चीजें क्लियर होता है, आपका आउटपुट बढ़ता है उससे। क्योंकि मैंने वैसा किया था, जितना आप सर से कनेक्टेड रहोगे उतना अच्छा रहता है। गुड, वही पॉइंट है यार। सब लोग ये मतलब पॉइंट है, हम लोग जैसे हम टीचर्स सारे यहाँ पे इंस्पायर एकेडमी में सारा स्टाफ और सारे जो टीचर्स हैं ये सभी बहुत फ्रेंडली रहते हैं स्टूडेंट से, टीचर से। इसलिए क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि ये जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, ये बहुत ही स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है। डिफरेंट स्टूडेंट के लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। तो जितना आप टीचर्स के टच में रहते हैं, टीचर्स आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है एज पर योर कैपेबिलिटी एंड योर आइडियाज, कि आपका तरीका कैसा है, आपका पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सजेशंस डिफरेंट होते हैं। तो सपोज प्रसाद हमारे पास आता है, वो कुछ डाउट्स पूछता है, वो पूछता है सर मुझे कैसा करना चाहिए, तो हमें पता है कि प्रसाद कितना कैप्चर कर सकता है, कितना और एफर्ट लगा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सजेशन देते हैं। अदर स्टूडेंट आता है, उसको उसके अकॉर्डिंग सजेशन देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक रिजिड कुछ रूल नहीं अपने लिए बना लेना जिसका आप आउटपुट ही नहीं कुछ गेन कर पाए। इट्स बेटर है कि टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, और हम लोग बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं सारे स्टूडेंट्स की। कोई किसी भी टाइप के कैसे भी डाउट्स पूछे, सारा ही सबको हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से। तो वो एक बेनिफिट है आपके लिए। आप लोग हमारे कांटेक्ट में आए हो, तो आप लोग टीचर से अगर कांटेक्ट में रहते हो तो किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी पर्टिकुलर किसी टीचर से आप कुछ भी पूछें, वो आपको बेस्ट सजेशन, बेस्ट गाइड करेगा। तो वो एक चीज बहुत ही बेटर रही है। इंस्पायर का जो इतना अच्छा रिजल्ट रहा है लास्ट ईयर, उसका मेन कॉज यही था कि पर्सन टू पर्सन सभी के लिए जो बेस्ट था वो हमने सजेस्ट किया, सभी के लिए जो बेस्ट तरीका था वो हमने उनके लिए हेल्प किया हुआ है। तो आप लोग के लिए भी यही सजेशन रहेगा। प्रसाद का भी यही मानना है, यही ओपिनियन उसका भी है कि उसने भी यही पॉइंट बोला, क्योंकि हर एक बच्चा 100% नहीं कर सकता। किसी की 70 की कैपेबिलिटी है, किसी की 80 की है। तो उस सर को पता रहता है कि किसको कितना करना चाहिए, और वो उस बच्चे के लिए उतना इनफ रहता है, वो बेस्ट आउटपुट आता है उससे। वेंटोर पे टेस्ट करना सीखना होगा आपको बेसिकली। ओके देन आई थिंक अगर किसी के कुछ और डाउट्स हैं तो पूछें। या
सर अभी संडे को हमारी फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट टेस्ट है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने चाहिए? ऑलरेडी मैंने बताया है, केमिस्ट्री के लिए जो भी हम नोट्स में किया है ना मॉडल्स, उन मॉडल्स के ऊपर ही आएगा। इनफैक्ट उससे थोड़ा कम लेवल के ही आएंगे, एज दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम। इजी रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स है उनके अराउंड ही रहेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन का आएगा। इफ यू आर थरो विद ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन दीज लेक्चर्स, इन दिस 7-8 लेक्चर्स जो भी किया हमने, और प्रैक्टिस शीट्स में जो भी डिस्कस किया है, उनके ऊपर ही मॉडल्स रहेंगे। उनके अलावा बाहर का कुछ नहीं आएगा। तुम लोग एग्जाम लिखते समय तुम लोग को पता चल जाएगा। ओके और सेम फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में मैंने जो प्रैक्टिस शीट दी है, सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिस शीट टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का भी सेक्शन डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंटल स्किल जिसमें स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स डिस्कस किया था, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अभी टेस्ट के लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो जो क्लासरूम में हमने रिवाइज कराया हुआ है नोट्स में क्वेश्चन, ड्यूरिंग नोट्स जब हम टीचिंग करते हैं, जो क्वेश्चंस हम ड्यूरिंग टीचिंग सिखाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट में उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स के लिए भी अभी फर्स्ट टेस्ट है हमारा, तो कम्प्लीटली तुम शीट और अभी नोट्स पे डिपेंड हो सकते हो यार। जो हम लोगों ने नोट्स के अंदर क्वेश्चंस कवर किए हैं वही आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। और रिवाइज का मतलब ये नहीं कि जस्ट उसको रीड कर लिया, प्रॉपर उसको एज अ सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरह उसको अलग से सॉल्व करो। और जब तक तुम्हारा आंसर मैच नहीं होता है तब तक वो नहीं देखना है हम लोगों को वापस से, क्योंकि प्रैक्टिस कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स और जो शीट मैंने प्रोवाइड किया अभी, वो पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, वो कंप्लीट आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो बस उतना ही करना है, वही सफिशिएंट है अभी इस टेस्ट के लिए। तो अभी जो नोट्स में जो भी किया है ना, सारे क्वेश्चंस फिर से कर लेना, खुद कर लेना। हाँ बस खुद कर लेना। you will score 25 questions right, you will get 25 questions right out of 30. क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे अभी कल का टाइम दिया गया आपको, आपका कल का पूरा टाइम है, तो यार टेस्ट के एक दिन पहले का डे तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें अगर आप ने एफर्ट नहीं लगाया ना पूरा, तो फिर आपका वो आउटपुट जो आना चाहिए वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। आप पूरा वीक बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बट टेस्ट के जस्ट पहले वाले डे पे अगर आप वीक पढ़ गए तो फिर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। तो ये जो टेस्ट के एक दिन पहले वाला डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ रिवाइज करना है आपको, तीनों सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है कि टेस्ट के एक दिन पहले तो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल कोई भी टाइप का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। टोटली टेस्ट के एक दिन पहले का डे तो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, टोटली फोकस्ड कि आपको क्या स्टडी करना है। लेकिन फिर भी टेस्ट के पहले एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप तो रखना। ऐसा नहीं कि रात भर जगते रहे पढ़ते रहे, तो हाँ, फिर वो टेस्ट वाला में प्रॉब्लम आ क्राइटेरिया जाए। तो बिल्कुल नहीं रखना। हाँ, मतलब फोकस्ड होना है, लेकिन 7 to 8 आवर्स का स्लीप मस्ट है। ओके, क्योंकि हाँ बिल्कुल वही किसी और के कुछ डाउट्स हो तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड दिस मीटिंग नाउ। अगर सर किसी और को कुछ डाउट्स किया वो बायो के लेक्चर्स, बायो का लेक्चर्स वही रहा है। नेक्स्ट वीक से 2 लेक्चर्स में पोस्ट करता हूँ। इस वीक में तो अभी इस वीक में कल एक लेक्चर पोस्ट किया है ना, और ये 2 लेक्चर्स के ऊपर ही रहेगा टेस्ट जो भी रहेगा। 30 क्वेश्चंस होगा, ऑल द 30 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दीस 2 लेक्चर्स। जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन, एंड फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ मैथ उनके लिए बायोलॉजी रहेगा सेम 30 क्वेश्चंस। तो जो भी बायोलॉजी के लेक्चर्स हुए उस पे बेस्ड ये पॉइंट रहेंगे। और फिजिक्स में अभी जो मैंने शीट दी है उसमें किसी को कुछ डाउट होता है तो वो डाउट्स अभी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे कुछ भी डाउट है। और अदरवाइज टुमारो इवनिंग मैं एक लेक्चर 1 आवर का रखूंगा स्पेशल फॉर पर्टिकुलर डाउट्स। तो आज और कल मॉर्निंग पूरा टाइम दें और जो भी हो कंप्लीट करने का ट्राई करें। कल इवनिंग जो भी डाउट्स होंगे मैं डायरेक्टली 1 आवर का लेक्चर रख के डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बट बेस्ट है कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें सारे लोग। तो किसी भी स्टूडेंट को कुछ और डाउट है, कुछ सजेशन या कुछ डाउट्स वो पोस्ट करना चाहता है, बता सकता है। अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग। So anyone, any doubts?
भूख लग रहा है क्या सब लोगों को? नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी उतना हम लोगों को नहीं है इसलिए, बट चलेगा सून by the course of time ये हो जाएगा. We'll have one more session once the lockdown is done after all his examinations. That's examination. चलेगा. We'll have one more session. Okay then I think goodbye everyone then. किसी को one last question? Yeah, one last question. One last question. Anyone? नहीं ये क्वेश्चन तो अब कंपलसरी है. कोई एक स्टूडेंट पूछे ऑफ कोर्स. कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो. कोई नहीं. No one is gonna ask. Okay, प्रसाद तुम ही बता दो. If you want to say anything. Okay. Okay, then I think goodbye everyone, and I guess best of luck for everyone. Okay. All the best.